घुमाते रहिए, अपना मन भी साथ साथ घूम रहा है. Your mind is also moving along with the head. And come down, धीरे धीरे नीचे आ जाए. Slowly come down. Now take the hands to the sides, हाथ को साइड में लेके जाएं और बड़ा सर्कल बनाएं. Make big circles, गोल घुमाएं. Now, along with the 7-day challenge, there is one more challenge. Will you be able to keep smile throughout the session? विपरीत दिशा. दूसरा challenge भी है 7 दिन की challenge के साथ smile challenge. Smile रख पाते हैं क्या आप? I know chakra balancing is a very interesting topic for everybody. सबके लिए बहुत interesting topic है. If it's a really interesting topic, raise your hand. वहाँ पे हैं आप, वहाँ से हाथ खड़ा कर सकते हैं. Yes, yes. Okay. Now, let's bend sideways. Sideways मोड़िए. Smile के साथ. And come back up and twist. शरीर को twist करिए. And hear the kadak kadak sound from your spine. And exhale. Bend down, push down. आगे और नीचे झुकिए. ऊपर नीचे शरीर को करिए. Move the body up and down. And one more warm up exercise. Move the legs a little wider. पैर को थोड़ा दूर दूर करिए और नीचे झुके opposite पैर को touch करिए. Bend down and touch your opposite foot, or you can follow Isha. Touch the knee. Simple version. And slowly come back up. धीरे धीरे ऊपर आ जाए. अभी हम शुरू करते हैं. देखिए चक्रा बैलेंसिंग क्यों करना है? Why do we need to do chakra balancing? Because the main 7 chakras, each chakra has different emotions attached to it. एक एक चक्र एक एक भावना के साथ और 2-3 और भावना के साथ जुड़ा है. जब इसमें हम बैलेंस लेके आते हैं, अपना शरीर और ग्लैंड्स भी उसके साथ साथ है. ग्लैंड्स ठीक से फंक्शन करता है, अपना इमोशंस भी बैलेंस में आ जाते हैं. When you bring harmony in the chakras, what is happening? You are stimulating all the glands that are present close to the chakra and also bringing all the emotions into balance. That's the beauty about chakra. All right. So we'll do the asanas and immediately do the chakra scanning process. हम आसन्स करके फटाफट चक्रा स्कैनिंग प्रोसेस करेंगे. आसन आज ऐसे होगा, नृत्य जैसा होगा. Will be like a dance. We'll be flowing from one asana to other. So we'll not be holding longer, but we'll be flowing. All right. चलिए बैठ जाए. Let's sit down. Sit comfortably. जैसा भी आपका comfortable रहे वैसा बैठ जाए. आंखों को बंद करिए. Close your eyes. Now we'll chant Om 3 times. 3 बार ओम उच्चारण करेंगे. Swansanda. Breathe in. Om. Swansanda. Once again. Breathe in. Relax your body and mind. विश्राम दीजिए शरीर और मन का. और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं. Slowly you may open your eyes. If you have any doubts in the asana, you can look at us and do. और कुछ भी डाउट होते हैं हमको देख के करिए. All right. और you can, if you want, you can keep your eyes closed also and do it. अगर चाहिए आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं. मुस्कान रखिए. Now we'll begin with body rotation. Breathe in, go back. श्वास अंदर पीछे जाए. श्वास छोड़िए, आगे झुकिए. Exhale, bend forward. और दाहिने ओर से शरीर को घुमाना, गोल गोल घुमाना शुरू करिए. From the right side, start rotating the body in circles. 3 rotations करेंगे. We'll do 3 rotations. मीडियम स्पीड पे करिए. तेजी से नहीं करना. Don't rush. Do it at medium pace. Now as you come down, change the direction. नीचे आते आते विपरीत दिशा में चेंज करिए. Are you still smiling? Your mind is totally with your body and breath. और नीचे आ जाए. अपना मन को शरीर और श्वास के साथ रखिए. ऊपर आ जाए. Come up.
lie down on the stomach. पेट के बल लेट जाएं. Now what you can do, you can make a fist with both the hands. दोनों हाथ से मुट्ठी बनाइए और जंघा के नीचे रखिए. Place the fist under your thighs. Bring the legs closer and as you inhale, lift both your legs up. Shalabhasan. श्वास लेते लेते दोनों पैर को ऊपर उठाएं, घुटनों को सीधा करिए. Straighten your knees. Keep breathing. Shalabhasan. Strengthens your glutes, your hamstrings, jangha, buttocks से सबको strength देते. Lower back. And bring the legs down. पैर को नीचे करिए. Now bring both your palms under the shoulders. दोनों हाथ हथेली के नीचे. श्वास लेते लेते भुजंगासन में ऊपर उठाएं. उठिए. Come up in the cobra and look up. ऊपर देखिए. Elbows bent, shoulders down. कंधों को नीचे खींचिए. ऊपर देखिए. श्वास को चलने दीजिए. Keep breathing. धीरे 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 नीचे आ जाए. Remember, we are going to move like a dance. नृत्य जैसा. और दोनों हाथ को आगे लेके जाएं. पैर को ऊपर उठाएं. Stretch your hands up to the front. Lift your whole body. पूरा शरीर को ऊपर उठाएं. And legs up. Superman, Superwoman pose or Super Yogi pose. Keep breathing. Feel the whole back strengthening. पूरा back इस आसन से मजबूत हो रहा है. And slowly come down. Now bend both your knees and hold your ankles if you can, or you can just simply bend the knees like Isha. हो सकता है तो अपना ankles को पकड़िए. धनुरासन करेंगे. वो pose. Inhale. Lift your chest up and thighs up. अपना छाती, अपना जंघा का ऊपर उठाएं और ऊपर देखिए. Look. Your body is becoming strong like a bow. एक धनुर जैसा अपना शरीर मजबूत हो रहा है. And slowly come down. धीरे धीरे नीचे आ जाएं और पीछे की ओर मोड़िए. And roll over to your back. Now we will strengthen the front side of the body. अभी आगे की तरफ को मजबूत करेंगे. दोनों हाथ को ऊपर लेके जाएं. Take both your hands over the head. We will do the Navkasan. अभी हम नौकासन करेंगे. Boat pose. You can follow Isha for the simple version. आसान वर्जन के लिए ईशा को फॉलो करिए, जहां पैर हाथ जमीन पे है. Breathe in and as you breathe out, lift your whole body up. श्वास छोड़ते छोड़ते पूरा शरीर को ऊपर उठाएं. हाथ, पैर, आंख एक लाइन पे होना चाहिए. बैक को सीधा रखिए. Keep your back straight. Your feet, toes, hands and eyes in one straight line. Keep breathing. And slowly exhale, come down. श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे आ जाएं और दोनों घुटनों को मोड़िए. नृत्य जैसा एक आसन से दूसरा आसन में जाते रहिए. Like a dance, keep flowing from one asana to another. Bend your knees, hold your legs. दोनों घुटनों को मोड़िए और हाथ से गले लगाएं पैर को. और श्वास छोड़ते छोड़ते जंघा को पेट के अंदर खींचिए और सिर को उठा के नाक को दोनों घुटनों के बीच में लेके जाए. As you exhale, pull your thighs into the stomach and lift your nose in between the knees. Keep a smile, keep breathing. And if you wish to, you may roll the body left and right. हल्का सा रोल कर सकते हैं. दाएं बाएं आगे पीछे रॉक करिए. Move the body up and down. And relax, विश्राम. Those of you who can, we will do the shoulder stand सर्वांगासन from here. We will lift the legs up. हो सकता है तो सर्वांगासन करिए, नहीं है तो आप ईशा को फॉलो करके सेतुबंध आसन कर सकते हैं. You can follow Isha. If you have any cervical issue, neck issue or BP heart issues, you can follow Isha, the simple version. और कमर को ऊपर उठाएं, घुटनों को ऊपर उठाएं हल्का सा फोर्स के साथ और बैक के ऊपर हाथ रखिए. Keep your hands behind the hips and gently lift your legs. पैर को ऊपर करिए. Keep breathing. सर्वांगासन.
shoulder style. Feel the blood flowing towards the head region. Even if it's Setu Bandhasan, you will feel the same. अगर आप सेतु बंधासन भी करेंगे ऐसा ही आपका ब्लड फ्लो सिर की तरफ होता महसूस होगा. And gently come down, bend your knees. धीरे धीरे पैर को नीचे लेके आए और दोनों हाथ को साइड में लेके जाए. टेक बोथ योर हैंड्स टू द साइड्स. राइट फुट ऑन द लेफ्ट नी. दाएं पांव को बाएं घुटनों के ऊपर रखिए एंड पुल योर राइट नी टू द लेफ्ट साइड. दाएं घुटनों को बाईं और नीचे खींचिए और दाहिने और मोड़ के देखिए सिर को. टर्न योर हेड टू द राइट साइड. पुल योर राइट नी टू द लेफ्ट साइड. मेक श्योर राइट शोल्डर इज ऑन द फ्लोर. दाएं घुटनों शोल्डर के ऊपर ही रहना चाहिए. कीप ब्रीदिंग. नटराज आसन. विपरीत दिशा, the other side. Feel a nice twist in the lower abdominal region. अच्छा सा ट्विस्ट महसूस होगा कमर के पास. And roll back to the center. वापस सेंटर में आ जाएं. 5 सेकंड के लिए विश्राम करें. Relax for 5 seconds. And turn to the right side and gently sit up. दाहिने और मोड़ के आराम से ऊपर उठ जाएं और दोनों पैर को आगे की तरफ रख के बैठ जाएं. Sit straight with your legs stretched to the front. Now bend your right knee. दाएं घुटनों को मोड़िए. दाएं हाथ को पीछे रखिए. Bend your right knee. Place your right hand behind you and grab your right hand with your right leg with your left hand. दाएं घुटनों को बाएं हाथ से पकड़िए और दाहिने और मोड़ के पीछे देखिए. Twist your body to the right side and look behind you. Variation of Ardha Matsyendrasana. Keep breathing. श्वास लेते छोड़ते रहिए. Every twist is massaging all the organs inside. जो भी ट्विस्ट होता है अपना शरीर में सारा ऑर्गन्स का मसाज मिलता है उससे. और विपरीत दिशा, to the other side. Keep your attention on the stomach region. पेट पर ध्यान रखिए. And gently straighten the legs. सीधा बैठ जाएं. Now you may sit in Sukhasana or whatever position is comfortable. Cross leg बैठ जाएं और Ardha Padmasana. Now breathe in. Take both your hands up and bring the palms together. श्वास लेते लेते दोनों हाथ को जोड़िए और ऊपर खींचिए. Stretch up. Parvatasana. Smile on your face. मुस्कान रखिए. And slowly and gently bring your hands down. धीरे धीरे हाथ को नीचे करिए और दाएं हाथ में you can do the Adi Mudra. Thumb inside, roll the 4 fingers. Left hand से अपना wrist को पकड़िए, खलैया को पकड़िए. Right? Behind you, पीछे. Breathe in, श्वास अंदर, पीछे जाए, योगा मुद्रा. Breathe out, bend forward. श्वास छोड़ते छोड़ते आगे और नीचे झुकिए. जितना हो सकता है उतना झुकिए. Bend only as much as your body allows you to. Keep breathing. श्वास अंदर बाहर करते रहिए. And slowly come up. Close your eyes and sit straight for the chakra scanning. अभी सीधा बैठ जाए, आंख बंद करके बैठ जाए. अभी हम चक्रा स्कैनिंग करेंगे. मैं एक एक जगह बोलूंगा शरीर में, वहां अपना ध्यान को लेके जाएं और वहां हम ब्राह्मर का आवाज करेंगे. आवाज करेंगे. I will tell you where to take your attention in the body. You take your attention to that place and you make the Brahmari sound. All right, by which the healing will happen. Remember, after this, immediately we will start the master class on diet and sleep and what next after 7 days. इसके बाद हम तुरंत मास्टर क्लास शुरू कर देंगे डाइट के बारे में, खाने के बारे में और नींद के बारे में और कैसे आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे. Take a deep breath in
लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। टेक योर अटेंशन टू द बेस ऑफ द स्पाइन, मूलाधार पर अपना ध्यान को लेके जाएं, जहां अपना शरीर, रीढ़ की हड्डी योगा मैट और जमीन को टच करते हैं, वहां वेयर योर बॉडी इज टचिंग द फ्लोर, नियर द एनस, गुदाद्वार के पास। द फर्स्ट चक्र, पहला चक्र, मूलाधार चक्र। श्वास अंदर, ब्रीद इन, now move your attention 3 inches above behind your genitals, 3 इंच ऊपर जननेंद्र के पीछे अपना ध्यान को रखिए। Your attention behind the genitals. Second chakra, Swadhisthana chakra. Breathe in, swans अंदर। विश्राम, रिलैक्स। Bring your attention around the navel region. नाभि के पीछे ध्यान रखिए, पेट पे ध्यान रखिए। तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र, the third chakra. Breathe in, swans अंदर। Bring your attention to the heart region. हृदय पर ध्यान को लेके आए, अपना मन को वहां रखिए। Keep your mind in the heart region. अनाहत चक्र। Breathe in, swans अंदर। Feel the prana flowing, becoming alive in every cell of the body. शरीर में एक एक खंड में प्राण शक्ति बढ़ते जा रहे हैं। Bring your attention to the throat region. अपने गला पर ध्यान लेके आए। विशुद्धि चक्र। Become aware of the throat.
गला को महसूस करिए। श्वास अंदर, इनहेल, अटेंशन इन बिटवीन द आईब्रोज, दोनों भ्रुवों के बीच में ध्यान लेके आए। आज्ञा चक्र, मन को दोनों भ्रुवों के बीच में रखे। कीप योर माइंड इन बिटवीन द आईब्रोज। ब्रीद इन, श्वास अंदर, अटेंशन ऑन द टॉप ऑफ द हेड, सिर की चोटी पर ध्यान रखिए। सहस्रार चक्र, द सेवेंथ चक्र। रिलैक्स योर होल बॉडी, पूरा शरीर को विश्राम दीजिए। ब्रीद इन, श्वास अंदर, रिलैक्स, विश्राम। ओम शांति शांति शांति। फील द वाइब्रेशंस इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अपना शरीर में एक एक खंड में वाइब्रेशंस को महसूस करिए मुस्कान के साथ। And slowly and gently take a deep breath in, एक लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर एक्सेल। With a big smile on your face, becoming aware of your body and surroundings, अपना शरीर और वातावरण के प्रति सजग होते हुए बड़ा सा मुस्कान के साथ आंखें खोल सकते। You may open your eyes, धीरे धीरे आंखें खोलिए। जय गुरुदेव, नमस्ते। How are you feeling? कैसे लग रहा है अभी? How is your mind feeling? Are you feeling something is moving along your spine? ऐसा लग रहा है ना अपना रीढ़ की हड्डी के साथ कुछ तो चल रहा है, सही है ना? ये चक्रास में जब अपना शांति लेके आएंगे, अपना हार्मोनी कर देते हैं, उसको तरंगों को स्टिमुलेट करते हैं, बहुत सारी चीज अपना शरीर में ठीक होना शुरू करते हैं। When the chakras come in harmony, you will feel so many of the physical aspect and the mental aspect become better in the body. All right? Okay, now let's begin with the master class. If you want to take a pen and paper, आप लेके रख सकते हैं. If you want to take a pen and paper, please get it along with you. Now we will start the master class on diet, sleep tips, and how to move forward, how to continue the practice after this. हाँ, अभी हम
खाना कैसे खाना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, नींद बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और कैसे आप 7 दिन के बाद कल से आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम टुमारो व्हाट यू कैन डू टू कंटिन्यू योर योगा प्रैक्टिस, वी आर गोना सी। ऑलराइट, शैल वी बिगिन? शुरू करते हैं। ओके ओके, अभी चैट बॉक्स में बता दीजिए आपके हिसाब से हेल्थ माने क्या है। व्हाट इज हेल्थ अकॉर्डिंग टू यू? यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स। मैं आपका कमेंट्स पढ़ूंगा। ऑलराइट, आई एम गोइंग टू रीड योर comments, so you can let me know in the comment section what is health according to you. हम बहुत सुने होंगे, we would have heard this and that, but लेकिन what is health according to you? Okay, I'm just reading, so everybody is sending hearts. I know if you really enjoyed the session, you can send the hearts also. अगर बहुत अच्छा लगा है तो hearts भेजिए, हमको पता चलेगा आपने enjoy किया, right? Staying fit is health. Okay, health is treasure. 7 days complete. अगर आप 7 days पूरा कंप्लीट भी किया, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप कितना दिन अटेंड किया 7 days चैलेंज को, राइट? यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी डेज ऑफ द चैलेंज यू अटेंडेड. Okay, feeling good, very nice, super. Health is wealth, fit and fine is health, peaceful and calm and disease free life is health, mental and physical well-being health, स्वस्थ रहना health है, बीमारी बिना रहना health है, staying fit is health is treasure. Okay, then body and mind free from disease and discomfort. I'm keeping my laptop here so that I can read your comments. That's why I keep looking down. मैं नीचे देखूंगा क्योंकि लैपटॉप में आपका सारा कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, इसलिए ठीक है। चलिए, physical, mental, social, spiritual well-being is health. Wow. Peace of mind, happy feeling in the body. Awesome. So many of you have completed 7 days, 7 कभी कुछ लोग 6 आए हैं, कोई बात नहीं. Awesome. Feeling better. 7 days completed. Health is everything is health. Awesome. So you all know that health is important, right? So health, there are 3 aspects. If you are healthy in 3 aspects, you are healthy. अगर इस 3 चीज में आप स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हैं. वो 3 चीज क्या है? पहला चीज फूड, सही खाना करना चाहिए हेल्थ रखने के लिए. यू नीड ईट द राइट काइंड ऑफ फूड टू बी हेल्दी. ऑलराइट, द सेकंड थिंग इज शरीर में स्वस्थ, बीइंग हेल्दी इन द बॉडी, बीइंग डिजीज फ्री, बीइंग पेन फ्री, स्वस्थ रहना है और बीमारी से मुक्त रहना है. और तीसरा चीज मन, माइंड इज पीसफुल, माइंड इज रिलैक्स्ड, मन स्वस्थ है, मन विश्राम है, फिर आप हेल्थ रह सकते हैं, हेल्दी. Alright, so we're going to be looking into these 3 things in today's presentation. आज के presentation में इस 3 चीज के बारे में बात करेंगे. पहले मैं मेरे बारे में बता दूंगा. Let me tell you about myself quickly because some of you might have missed the orientation session. कुछ लोग orientation miss किया होगा. Alright, so मेरा नाम तो मयूर कार्तिक पता है, मेरे साथ ईशा जी था. Right, I'm a government certified trainer and I'm registered with the Yoga Alliance USA as 500 hours experienced registered yoga teacher. I also teach children. I also teach pregnant women. All right, I have more than 14 years of experience में 14 साल से ज्यादा योगा सिखाते आ रहा हूँ. अभी तक मैंने 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को सिखाया दुनिया भर. I've taught more than 2.5 lakhs of people all around the world from 50 countries, 50 countries से. And I also train yoga teachers. मैं बहुत सारी योगा टीचर्स को भी ट्रेन करता हूँ शीशी स्कूल ऑफ योगा के साथ, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ. अभी तक मैंने 5,500 से भी ज्यादा टीचर्स को ट्रेन किया है. I've trained more than 5,500 teachers worldwide. Alright, so this is about me and whatever we have been sharing is all from this experience. जो भी आपने शेयर किया अनुभव, इस अनुभव से ही शेयर किया. Alright, okay, coming back to the session मास्टर क्लास में क्या क्या कवर होगा? फर्स्ट इज नो योर डाइट, अपना डाइट के बारे में बात करेंगे. दूसरा चीज अपना कैसे अपना नींद को बढ़ाएंगे, हाउ टू इंप्रूव योर स्लीप. एंड थर्ड थिंग, लाइफस्टाइल एंड मूवमेंट, व्हाई एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, व्हाई आसना योगा इज इंपॉर्टेंट, क्यों योग अभ्यास आसन अभ्यास जरूरत है, उसके बारे में बात करेंगे. और आगे हम इस प्रैक्टिस को कैसे कंटिन्यू करेंगे, हाउ डू वी कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस वे कल से, उसके बारे में बात करेंगे. ऑलराइट, सो मैं अभी आपको 4 टिप्स दूंगा खाने के बारे में. आई विल गिव यू 4 टिप्स अबाउट फूड. द फर्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीना. कैसे पानी पीना चाहिए? पहला चीज, जब पानी पीते हैं आप बैठ के पिए, खड़े होके मत पिए. खड़े होके पीते तो पूरा प्रेशर जाते हैं ऑर्गन्स पे. व्हेन यू स्टैंड एंड ड्रिंक, इट पुट्स लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द ऑर्गन्स एंड आल्सो द नीज, घुटनों के ऊपर. सो दैट्स व्हाई इट्स गुड हैबिट टू सिट एंड ड्रिंक वाटर. इसलिए बैठ के पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1. नंबर 2,
यू विल हैव टू ड्रिंक स्लोली, धीरे धीरे पानी को पीना है, क्योंकि जल्दी से हम पानी पीते हैं, लॉट ऑफ प्रेशर लोड गोज ऑन द किडनी बिकॉज वाटर इज गेटिंग अब्सॉर्ब्ड क्विकली। ऑलराइट, हम व्हेन यू ड्रिंक वाटर वेरी क्विक, क्या होता है, अपना शरीर जल्दी से पानी को ऑब्जर्व करते हैं, किडनी के ऊपर बहुत लोड हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर सिप बाय सिप, धीरे धीरे पानी पीना बहुत जरूरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? एंड व्हेन यू आर ईटिंग अ मील 30 minutes बिफोर and 30 minutes आफ्टर and this meal time, do not drink water because that slows down your Jataragni, your digestive fire. खाना खाने के 30 मिनट पहले 30 मिनट बाद इस गैप पे पानी मत पिए, क्योंकि जठराग्नि को कम कर देता है। सो ड्रिंक वाटर बिफोर और आफ्टर दैट, इसके 30 मिनट पहले और बाद में पानी पिए। ये 3 इंपॉर्टेंट टिप्स हमको याद रखने हैं पानी के बारे में। You have to remember these 3 tips with respect to water. You agree? You're enjoying? Give me a thumbs up if you're really enjoying this. All right. Next, food, खाना। अभी carbs, when we mean carbs, grains like rice, roti, atta, right, all the breads, all these are all carbs. Now reduce that by half. अब जो भी ज्यादा हम carbs खाते हैं, we eat a lot of carbs, lot of grains, so you reduce the grains by half. That is very important. And increase the fiber intake, protein intake by double. जो fibers, proteins को double करिए, मतलब क्या, सब्जी और दाल, lentils, vegetables, then all pulses, all this you increase, isko double kariye. Are you understanding what I'm saying? So this is very important. And consume good fats. हम good fats खाते नहीं आजकल. We don't even eat good fats. Good fats is very important for the brain, for your cardiovascular health. अपना मस्तिष्क, अपना हृदय के हेल्थ के लिए good fats अच्छा है। Good fats किस में मिलता है? Nuts में मिलता है। Walnuts is very good, one of the best good fats you get from walnuts. And seeds, बीज, sunflower seeds, pumpkin seeds, chia seeds, all these seeds contain lot of good fats. So इसको खाइए, ठीक है? सोक करके थोड़ा अलग रख के खा सकते हैं। Then very important, eat sattvic food. When we say sattvic food, that food that is light on the system, अपना शरीर के लिए अच्छा है। वो फ्रेशली कुक्ड फूड होना चाहिए, ऐसा नहीं 2 दिन पहले कुक करके फ्रिज में रखे खा रहे, वैसा फूड नहीं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, यू शुड ईट द फूड कुक्ड विद इन 4 hours। आयुर्वेदा के हिसाब से 4 घंटे के अंदर आप जो खाना बनाते हैं उसको खाना चाहिए, उसको हम सात्विक खाना कहते हैं, और हल्का भी होना चाहिए। इज दैट क्लियर? एंड द लास्ट इज चू योर फूड। अच्छा से अपना खाना को चबा के खाइए, राइट? क्योंकि अपना सलाइवा से ही अपना डाइजेशन शुरू होता है। Your digestion starts in the mouth because saliva has salivary amylase that starts breaking down the carbohydrates. मुंह से ही डाइजेशन शुरू होता है। सो अच्छा से चबा के ऐसा पानी जैसे बना के पिए। ये ओवर ईटिंग को भी रुकने के लिए एक तरीका है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू स्टॉप ओवर ईटिंग व्हेन यू चू द फूड प्रॉपरली। इज दैट क्लियर? दीज टिप्स आर क्लियर? यस? आर यू मेकिंग नोट्स? नोट्स बना रहे हैं ना आप, राइट? Now fruits, eating fruits is important. Many of us don't eat fruits these days. बहुत लोग हम fruits नहीं खाते हैं आजकल, right? So very important. Why? Because fruits has lot of fibers and lot of vitamins and minerals. बहुत सारी vitamins, minerals और fibers fruit से मिलता है। Now कैसे fruit खाना चाहिए? How to eat fruits? Eat empty stomach. That's very important. So always eat it before food. आपको खाली पेट में fruits खाना बहुत उचित है, इसलिए आप खाने की पहले खाना जरूरत है। Are you understanding what I'm saying? Because fibers take some time to digest, so eating it on empty stomach makes it faster. हाँ, फाइबर्स थोड़ा समय लेता है डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए पहले खाना अच्छा है। खाने के बाद तुरंत मत खाइए। डोंट ईट इमीडिएटली आफ्टर फूड, दैट इज नंबर 1। एंड डोंट मिक्स डिफरेंट टेस्ट फूड्स, लाइक अलग अलग टेस्ट फ्रूट्स को मिक्स मत करिए। एग्जाम्पल, खट्टा और मीठा को मिक्स मत करिए। डोंट मिक्स स्वीट एंड सवर, लाइक एप्पल एंड ऑरेंज, उसको मिक्स मत करिए। दैट काइंड ऑफ रिएक्ट्स इन द स्टमक डिफरेंटली, वो पेट में अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ये सिंपल टिप्स है फ्रूट्स के बारे में। दिस अबाउट फ्रूट्स, यू कैन ईट अदर ऑल द फ्रूट्स एज यू लाइक। जो भी फ्रूट्स खाना चाहते हैं आप मन भर के खा सकते हैं, बट लेकिन इसको फॉलो करिए। इज दैट क्लियर? यस? नाउ नेक्स्ट इज हैबिट्स ऑफ ईटिंग। ईटिंग का हैबिट्स का कैसे चेंज करें? फर्स्ट थिंग, एवरी डे मेक श्योर यूर ईटिंग योर मील्स एट द सेम टाइम। रोज एक ही समय में आप खाना खाने की कोशिश करिए, क्योंकि एसिडिटी को ये बंद कर देते हैं। दिस स्टॉप्स योर एसिडिटी बिकॉज द स्टमक प्रिपेयर्स इटसेल्फ बेस्ड ऑन द टाइमिंग यू ईट। अपना पेट खुद को तैयार करते हैं आपका आदत के हिसाब से, इसलिए हमको एक ही टाइम पे खाना खाना उचित है। कहीं हल्का सा इधर उधर ठीक है, लिटिल बिट हियर एंड देयर इट्स फाइन, बट डोंट रेगुलरली कीप चेंजिंग, दैट कंफ्यूजेस द बॉडी। नंबर 1। सेकंड इज, खाना खाने के पहले आंख बंद करके थोड़ा
कृतज्ञ हो जाइए इस खाने के लिए. Start with gratitude because that brings a sense of good feeling in the body, and the food that goes in such a space also creates good vibrations. जो खाना अच्छा मन स्थिति में जाता है अंदर, अपना सकारात्मक भावना और तरंगों को पैदा करता है. All right, and remember this, according to Ayurveda, your lunch should be the heaviest, your breakfast and dinner should be light. Ayurveda के हिसाब से lunch सबसे बड़ा मील होना चाहिए, breakfast और dinner को हल्का रखिए. ये सिर्फ 3 टिप्स हैं हैबिट्स के लिए, खाने के हैबिट्स. These are the 3 tips for maintaining a healthy habit. Is that clear? All right, now what to avoid, what to eat. See, these are the main foods that we consume. I've given you some basic things which can be followed easily. मैं आपको हल्का सा बेसिक चीज ही मैं बता रहा हूँ जो आप फॉलो कर सकें. ऑलराइट, क्या अवॉइड करना चाहिए? रिफाइंड ऑयल्स अवॉइड करिए, पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि ऑल दिस ऑयल्स बहुत गर्मी में हीट बार बार हीट करके वो करते हैं. So these oils are heated, refined oils are high temperatures again and again, so it kills the nutrition, also becomes carcinogenic. वो उधर टॉक्सिन्स भी बहुत जनरेट होता है. इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? व्हाट टू टेक कोल्ड प्रेस ऑयल. ऑलराइट, कोल्ड प्रेस ऑयल लीजिए. एग्जांपल आयुर्वेदा के हिसाब से इस 4 ऑयल सबसे बेस्ट हैं कुकिंग के लिए. अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा these 4 oils are the best according for cooking. First is coconut oil, नारियल तेल, then mustard oil, mustard oil is sarson ka tel, then sesame oil, til oil, and the fourth is cow's ghee. Ghai ka ghee, clarified butter is the best for cooking. Is that clear? Yes. Second is packaged foods. Packaged food माने क्या है? जो अपना सुपरमार्केट में जाइए, जो भी शेल्फ में मिलता है ना पैक करके, स्नैक्स और बहुत सारे आइटम्स, उसमें बहुत सारे केमिकल्स जाते हैं, टॉक्सिन्स जाते हैं, ये बहुत हार्मोन इम्बैलेंस भी क्रिएट करता है. सो उसके ऑल्टरनेटिव क्या है? आप घर में ही जो आपके जानकारी चीज से स्नैक्स बना के खाइए. So avoid processed food because they have a lot of chemicals, a lot of things injected into the packing, because it remains in the shelf for such a long time, right? If you keep normal food, it decays very quickly, but this processed food stays for a long time. अब साधारण खाना रखिए 2-3 दिन में खराब हो जाते हैं, पर लेकिन ये पैक्ड फूड देखिए बहुत लंबा समय तक ऐसे ही रहता है. तो इसलिए हार्मोन इम्बैलेंस आते हैं. दिस क्रिएट्स लॉट ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस इन द बॉडी. सो मेक स्नैक्स or food at home with the known things that you know that the ingredients are safe. All right, this is the second thing. Third, मैदा रिफाइंड फ्लावर अवॉइड करिए. क्यों? इससे अगेन प्रोसेस से बहुत सारी केमिकल्स डाल के पूरा फाइबर्स को निकाल दिया. बहुत सारी ग्लूकोज इश्यूज, ग्लूटेन इश्यूज इसी से शुरू होता है. अवॉइडिंग मैदा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉट ऑफ प्रोसेसिंग हैज हैपेंड. ऑल द fibers, nutritions, lot of nutrients have been extracted out. So what is the alternative? इसका alternative क्या है? Eat whole grains. Little millets, ragi, jowar, barley, buckwheat, all these kind of things are very good. Eat whole grains खाइए. Millets खा सकते हैं आप, और buckwheat खा सकते हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब अच्छा है. Alright. Fourth, white sugar needs to be avoided because it has again lot of processing, lot of chemicals treated. Go for raw sugar. Raw sugar चाहिए, but still eat in moderation. Just because it's raw sugar, don't eat a lot. Alright, that also has a lot of caloric value, but it's chemical free. Raw sugar chemical free है. Alright, or same table salt. Instead of table salt, again heavily processed, lot of base minerals are removed. You can go for raw salt, like sea salt, pink salt, very less processed है. So you get all the minerals. आपको जो भी minerals चाहिए वो उससे मिल जाते हैं. Alright, is this clear? Are you making note of it? If you are really enjoying this, do you agree with me? Give me thumbs up. आप thumbs up भेजिए या hearts भेजिए, मेरे साथ agree करते हैं तो आप. ठीक है? Next. Okay. Now the important problem is all those craving snacks and junk food contains all these things that you need to avoid. जो भी आप avoid करना चाहते हैं junk food है जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, सारा इसी से ही बना हुआ जो हमको avoid करना है. बहुत टेस्टी है लेकिन स्वाद तो बहुत अच्छा है. इस craving को कैसे रोकें? How do we stop the craving? That is the question. The answer is, you want to know the answer? आप जानना चाहते हैं answer? Yes. The answer is daily yoga. आप रोज योगा करेंगे, आप देखिए ना आपका शरीर ऐसा धीरे धीरे चेंज होगा, क्योंकि जब अपना मसल स्ट्रेच ओके कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट रिलीजेस गुड हार्मोन्स. व्हेन द मसल स्ट्रेच एंड ओपन, अच्छा हार्मोन्स रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन. And when you do deep breathing, your vagus nerve gets stimulated. अब जब लंबा गहरी सांस अंदर बाहर करते हैं, अपना वेगस नर्व कहते हैं. वेगस नर्व is responsible for so many functions of the body. It is also responsible for keeping the body happy and relaxed.
अपना शरीर का स्वस्थ के लिए वेगस नर्व का स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी है। ये आसन से, बहुत सारे आसन से स्टिमुलेट होता है, डीप ब्रीदिंग से स्टिमुलेट होता है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन योर बॉडी इज नेचुरली फीलिंग हैप्पी, द क्रेविंग फॉर हैप्पीनेस और जॉय कम्स फ्रॉम दिस अनहेल्दी फूड गोज डाउन। जब अपना शरीर स्वस्थ रहता है, जो भी ये छोटा मोटा चीज से प्लेजर, छोटा प्लेजर आता है उसी से छूट जाते हैं। सो आपको हेल्दी ईटिंग अच्छा एस्टेब्लिश होगा, योर ईटिंग हैबिट्स विल बिकम हेल्दी, योर क्रेविंग फॉर ऑल दिस जंक फूड विल गो डाउन। अपना जो भी ये राग होता है ना ये जंक फूड का, ये सब कम हो जाता है। इंटरेस्टिंग राइट? सो हाउ योगा इज इम्पैक्टिंग इवन योर डाइट। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ना? यस। सो इसलिए अच्छा हेल्दी खाना डाइट फॉलो करने का आसान होता है, बिकम्स वेरी इजी टू फॉलो अ हेल्दी डाइट। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू इंप्रूव योर स्लीप। स्लीप को कैसे बढ़ाएं? ओके, पुट इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी ऑफ यू स्लीप आफ्टर 11 o'clock। 11 बजे के बाद कितने लोग सोते हैं, उसके बारे में बताइए, चैट बॉक्स में डालिए। पुट इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी ऑफ यू स्लीप आफ्टर 11 o'clock। यू कैन बी ऑनेस्ट, इट्स ओके, आप सच बता सकते हैं। ओके, लॉट ऑफ हैंड्स आर कमिंग अप 11 के बाद। Okay, see, I'll tell you why it is important to sleep early. Sleep is such an important aspect. It is not just a relaxation activity, but it recharges the whole body. हाँ, सिर्फ एक relaxation activity नहीं है, विश्राम करना activity नहीं है, अपना शरीर को पूरा तरीके से रिचार्ज करता है नींद। और जब रेस्ट करते हैं अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ते हैं। इसलिए जब तबीयत ठीक नहीं होते ना, डॉक्टर कहते हैं घर में, पता सो जाओ सो जाओ, क्योंकि जब सोते हैं अपना immunity बढ़ता है। That's why if you notice when you're not feeling well, doctor advises or anybody advises rest, sleep, because sleep fixes your immunity. All right. And third thing, it regulates your appetite. भूख सही समय से होता है, ये बहुत जरूरी है। Your appetite happening at the right time is very important because only the nutrition will get absorbed. सिर्फ उसी वक्त अपना न्यूट्रिशन सही तरीके से अब्जॉर्ब होता है। इतना बेनिफिट्स है नींद का। और हार्मोन्स ठीक से रेगुलेट होता है, योर हार्मोन बिकम्स better. We have seen that in the bonus session about hormone balance, how sleep is important. हमने इसके बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं अपना बोनस सेशन में, राइट? सो हार्मोन्स का भी ठीक करता है ये, राइट? नाउ स्लीप इम्पैक्ट्स मेंटल हेल्थ, डू यू अग्री? स्लीप अपना मन का स्थिति को अफेक्ट करता है। कैसे? देखिए ना, आप अच्छा सोया, नेक्स्ट डे, अगले दिन आपको बहुत अच्छा फ्रेश लगता है, काम में प्रोडक्टिव होता है। व्हेन यू स्लीप वेल, हैव यू नोटिस योर डे इज वेरी हैप्पी, यू आर मोर प्रोडक्टिव। ठीक से नहीं सोते क्या होता है? व्हेन यू डोंट स्लीप प्रॉपर्ली, चिड़चिड़ापन होता है, यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, यू गेट इरिटेटेड फॉर स्मॉल थिंग, यू आर नॉट एबल टू फोकस, आपको एकाग्रता, फोकस, कंसंट्रेशन नहीं होता है। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, इसलिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मन को स्थिति को अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स द मेंटल स्टेट। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्लीप बिफोर 11 o'clock। हमने दिनचर्या सेशन में देखा है, योर लिवर इज ऑल्सो एक्टिव अराउंड दिस टाइम, सो यू हैव टू स्लीप। सो वी सॉ इन द दिनचर्या सेशन दैट अपना लिवर भी इस समय बहुत एक्टिव रहता है, इसलिए हमको इस 11 बजे के पहले मैक्स टू मैक्स सोना चाहिए। स्लीप बिफोर 11, गुड फॉर बोथ योर माइंड एंड द बॉडी। ऑलराइट, मैं अभी 5 टिप्स दूंगा। आई विल गिव यू 5 टिप्स टू इंप्रूव योर स्लीप क्वालिटी। फॉलो दिस। नंबर 1, ऑलवेज हैव अ स्टैंडर्ड स्लीप टाइम एंड वेकअप टाइम। आप एक फिक्स करिए इस टाइम को, कितना बजे आप सोने जाएंगे, कितना बजे आप उठेंगे, क्योंकि अपना बॉडी क्लॉक उसके हिसाब से सेट हो जाता है। योर बॉडी क्लॉक सेट्स अकॉर्डिंग टू दिस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमम फंक्शनिंग। अच्छा शरीर का फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सही स्केड्यूल। सेकेंड, अर्ली डिनर इज इंपॉर्टेंट। आपको 3 घंटा गैप होना चाहिए अपना डिनर और सोने के समय के बीच में, मिनिमम, लाइक 2.5 hours, 2 hours. Don't eat too close to your dinner time because your digestion gets affected and you don't get deep sleep. हाँ, 3 घंटा गैप रखिए, 3 hours of gap, because this is very important for digestion के लिए बहुत जरूरी है। ऑलराइट। थर्ड, reduce the lights। मतलब लाइट मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ लाइट्स। जो भी घर पे लाइट्स होता है ना, उसका इंटेंसिटी कम करना पड़ेगा। फोन से लाइट, टीवी से लाइट, लैपटॉप से लाइट, घर का लाइट, सबको आप कम करिए जितना कम कर सकते हैं। हाउ मच एवर यू कैन reduce the intensity of the lights even from the phone, TV, or the house, because your brain has to secrete melatonin. Melatonin एक sleep हार्मोन है, वो secrete होता है सिर्फ और सिर्फ ब्रेन को लगता है अंधेरे हो गया, अभी सोने का टाइम आ गया। The brain secretes melatonin only when it feels that it is dark, it's time to sleep. That's why reduce the intensity of the lights. लाइट का इंटेंसिटी कम करिए। और दिन में सनलाइट हल्का सा 20 मिनट तक सुबह और शाम लेना अच्छा है, अपना नींद क्वालिटी को बढ़ाएगा। When you have good
exposure to sunlight, 20 minutes in the morning or evening, it improves your sleep quality. The last thing that will improve your sleep quality is daily exercise and yoga asanas. रोज एक्सरसाइज करते हैं, रोज योगा करते हैं, क्योंकि अपना सर्कुलेशन बढ़ेगा, अपना न्यूट्रिशन सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्रेन को सोने के लिए आसान हो जाता है. Your brain finds it very easy to relax when there is improved circulation. Is that clear? Yes. So these are the tips you need to follow for good sleep. अच्छा नींद के लिए इस 5 टिप्स को फॉलो करिए. समझ आ गया? Yes. Now lifestyle. Now movement. क्यों एक्सरसाइज करना चाहिए, क्यों योग करना चाहिए? ओके, एक प्रश्न है सबके लिए. लुक एट दिस इमेज. ये इमेज को देखिए. इस इमेज में कौन से चीज बहुत शरीर के लिए खराब है? लुक एट दिस इमेज एंड टेल मी विच इज द मोस्ट डेंजरस थिंग. देयर इज अल्कोहल, देयर इज बर्गर, देयर इज कोक, देयर आर सिगरेट्स, देयर इज मोबाइल फोन. इस चीज में शरीर के लिए क्या खराब है? व्हाट इज द वर्स्ट थिंग फॉर द बॉडी? टेल मी, टेल मी, टेल मी. Okay, I'm waiting for the answers. Okay, tell me. जवाब बताइए. हाँ, ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं सिगरेट्स, अल्कोहल, all are bad. Some of them are saying chair, mobile phone, all mobile phone, all alcohol, chair, all. You want to know the answer? जवाब बहुत लोग ने सही बता दिया. Many of you have told the answer. The answer is chair. Right, the most problematic thing in the picture is chair, because sedentary lifestyle, बैठे रहना बहुत बड़ा problem है आजकल. In today's generation, the biggest problem is because computers have come, most of the job you are sitting, cars have come, most of them you're sitting and watching the TV. बैठ के आप टीवी देख रहे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, बैठे 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 क्या हो रहा है? सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है शरीर में. ऑर्गन्स को सही तरीके से न्यूट्रिशन, सही पानी नहीं मिल रहा है. राइट, एंड टॉक्सिन्स को बाहर नहीं फेंक पा रहे हैं. The toxins are not getting thrown out. Good circulation is not happening. So what will this create? Muscles are not functioning, joints are not functioning. एक दरवाजा को देखे ना, यूज नहीं करते हैं, krrrr, ऐसा आवाज आता है, सही है ना? So when you don't use the door, it starts getting jammed. It creates all the weird sounds. Same is with the body. ऐसा ही शरीर में है. Muscles weak हो जाते हैं, joint pain शुरू हो जाते हैं, your muscles become weak, your joints become painful and stiff, weight goes up, body weight goes up, and poor blood circulation. Right? So शरीर अफेक्ट होता है. दूसरा, मन का स्थिति को भी अफेक्ट करता है. यू फील वेरी स्लीपी, नींद आते रहते, थकान लगता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, लेजीनेस हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, लो एनर्जी फील होते हैं, बहुत स्ट्रेस, तनाव, नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं. You get stressed and anxiety because the body is becoming stiffer and it's impacting the mind. जब शरीर ऐसा सुकड़ते सुकड़ते जाते, अपना मन का स्थिति को भी अफेक्ट कर देता है. सही है ना? So what does this create? ये क्या क्रिएट करता है? लाइफस्टाइल डिजीजेस. शरीर और जो भी आजकल डिजीजेस सुनते हैं ना, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, बहुत सारे इश्यूज, एसिडिटी हो गया, बहुत सारी पेट constipation, lot of these issues are getting, lifestyle issues are getting created because of not moving the body, because our human body is designed to move. Look at your ancestors, they were physically so active. अपना पूर्वजनों को देखे ना, बहुत फिजिकली एक्टिव रहते थे, सही है ना? बट लेकिन आजकल हम मूव नहीं करते हैं, इतना इश्यूज शुरू हो जाते हैं. राइट, रिसर्च देखिए, बहुत सारी ऐसा रिसर्च है. इतना इंडिया में और दुनिया भर में डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, ओवरवेट का प्रॉब्लम है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है. रिसर्च सेज दैट सो मच ऑफ दिस इश्यूज आर कमिंग अप इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड. राइट, सो आई हैव अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. ऑलराइट, एक प्रश्न है आप सबके लिए. व्हाट इज द सॉल्यूशन टू बी हेल्दी, फिट एंड हैप्पी? स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए, खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए हमको? बताइए, बताइए, बताइए. नहीं रुके हो, आपका आंसर पढ़ने के लिए रुके हो. आपने 7 दिन हमारे साथ अभी योगा चैलेंज भी किया है, बहुत सारी
the importance of this because we have seen how it impacts the health, right? The answer is yoga. सिर्फ योगा आंसर है, उसको एक आदत भी बनना चाहिए, योगा करना पड़ेगा, राइट? यू विल हैव टू डू योगा, राइट? बिकॉज इट हेल्प्स टू ईट हेल्दी, आपको अच्छा हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखने के लिए मदद करता है. देन सेकेंड थिंग इज अच्छा नींद होने के लिए मदद करता है. इट हेल्प्स यू टू गेट गुड स्लीप. एंड थर्ड थिंग इज इट कीप्स योर बॉडी हेल्दी एंड फिट, अपना शरीर को स्वस्थ रखता है. एंड द बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये बहुत आसान है करना. The easiest part is so simple to do and आप घर से ही कर सकते हैं. You can simply be at home and do it. That is the best part about yoga, right? अभी देखिए 7 दिन हम घर से ही बैठ के किया, right? We were at home and we were doing and we were enjoying all these sessions. बहुत आनंद भी मिले इससे, right? Okay, आप क्या करने के लिए तैयार? अभी तो जवाब तो पता चल गया. So now you know the answer. Yoga is the way. But what are you ready to do for your health and happiness? अपना खुश और स्वस्थ के लिए क्या करना तैयार है आप बताइए मुझे, right? Remember this, only when we are healthy and happy we can make others healthy and happy. Only when we are healthy and happy our family members can be happy. जब हम खुश हैं, हम स्वस्थ हैं, हम दूसरों को मदद कर पाएंगे और अपना फैमिली, परिवार और फ्रेंड्स को भी खुश रख पाएंगे. Do you agree? Yes. Now you tell me what are you willing to do? आप क्या करने के लिए तैयार हैं बताइए. Yes. Do yoga every day. रोज योगा करिए, right? The answer is make yoga a daily habit. ये रोज का आदत बना दीजिए. जैसे हम सुबह उठ के दंत मंचन करते हैं, right? You brush your teeth, dental hygiene, like that. Doing yoga, make it a everyday habit. Like how you have breakfast, dinner. रोज योगा करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए. That is the key to be healthy and happy. यही है secret, right? Now, many of you have been asking, we want to continue the journey, we want to do daily yoga with us every day. So let me show you a quick short 30 seconds, 30 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा. हमारा साथ 10,000 से ज्यादा लोग रोज हमारा साथ मेरा और मुझे और ईशा के साथ योगा करते आ रहे हैं. There are more than 10,000 people who are doing yoga with me and Isha every day. I want to show a small छोटा सा 30-second clip on the experience of these people. Is that okay? Just 30 second का clip. Yes. Kilo bad fats on my body. All my knee pain and sleep disorder, all those things I'm now. I have lost 11 kilo bad fats on my body. All my knee pain and sleep disorder, all those things I'm now free. I've seen immense change in myself, not only physically but also mentally. And it is 18 kilometers. But for 9 hours I walked, and that also in Jammu Kashmir Pahadi area. I lost almost 15 to 16 kgs. Now I am 79. So my BP was 185. Now it reduced to 140. So that too without any medication. एक एक मेरा जो पार्ट ऑफ द शरीर है वो एनर्जेटिक हम फील करते हैं. These sessions have become such an integral part of my day and I look forward to them